Hi everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, Kritika Jaggi ma'am. So hello ma'am. Hi, ma'am. Hi, Ryan. Hello, hi. Yeah, how are you ma'am? How are you, ma'am? I'm doing very well. How are you? Yeah, absolutely fine ma'am. Great. So ma'am, it's an honor to have you on our podcast and I strongly believe कि uh, बहुत बहुत ज़्यादा हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहने वाला है प्लस जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे स्पेसिफिकली जो लाइफ साइंसेज डोमेन के हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सो I am just before the starting of the video, I would just like to give a heads up to all our viewers that you should kindly watch this video till the end. And so let's start without wasting much of our time. Let's start and hear it out from Kritika ma'am itself. So ma'am, could you tell our audience about your brief introduction and about your current role in your current organization and about your professional journey so far? Sure, sure. First of all, thank you so much. It is my pleasure to be here with both of you on this show. So, hi everyone. As Lavin mentioned, I am Kritika Jaggi, and overall, I have 7 years of experience into the market research and consulting domain, particularly dealing with life sciences, healthcare, medtech, pharma clients. So all of this, ये सब start कहाँ से हुआ, right? Let's just go back 7 years. So 7 years down the line, I completed my BTech in biotechnology. I was fond of biotechnology. I was always inclined towards the medical side. 11th grade, 12th grade, the plus one, plus two, हमें वहाँ पर options दिए जाते हैं, medical, non-medical. So I kind of was inclined towards getting medical. I was good in biology in my school. So वहाँ से शुरू हुआ. I did those 2 years, and just after the high school, I went for biotechnology. Those 4 years were amazing because there's so much happening in biotechnology. And right before joining biotechnology, someone told me कि यार बायोटेक में कुछ नहीं है. On the other hand, I knew through my like research or whatever we could do on internet during that time कि यार बायोटेक में कुछ तो है. But I got to know कि कुछ नहीं है. You're not gonna get a job or something. कुछ नहीं मिलेगा. But still, I had that passion that there is some untapped potential in this field, and I'm gonna go get it. So वो 4 साल हुए, and by the end of the fourth year, I would say by the end of the third year, I was sure कि जो आने वाला फाइनल ईयर है ना, इसको ऐसे नहीं जाने देना है. I have to be very clear कि मुझे जॉब करनी है. I should go for masters, or where do I want to see myself in the next 1 year. So कॉलेज से निकलना without something in hand was not my cup of tea. I was sure about that at least. Okay. So initially start हुआ fourth year में. I was kind of following the herd कि मैं कंप्यूटर साइंस कंपनीज के लिए बैठ रही हूँ, आईटी फर्म्स के लिए. आई एम गोइंग टू जेआईटी नोएडा. इफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. Yeah, yeah. तो नोएडा कैंपस में जा रहे हैं, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ऑल ऑफ दीज कंपनीज. बट आई वाज नॉट एबल टू बिलोंग माई सेल्फ टू दोज कंपनीज बिकॉज I was a biotechnologist by the third year. So I did some research, and after talking to my professors, the placement cell, and some of my seniors, I got to know that yaar, there is a company called Roots Analysis, which comes to JUIT, has a good life sciences wala package. They will provide you with good opportunities to learn in this field, and the domain is called market research. I Mm-hmm. started kind of reading about it. I was back in my fourth year. I got to know about roots analysis. I was in the process. I did well in the first round. It was a data interpretation, the aptitude test. I was a topper there. Did well in the GD as well. Got through 2 rounds of interviews and was interviewing with the CEO. And once he asked me that, what do you want to do after 5 years? I was blank. I don't know what to do after 5 years. I don't know. I just knew that I have to get into a firm. Maybe I have to get settled after my fourth year. I wasn't sure. Mm-hmm. So मेरा नहीं हुआ. You know, मुझे नहीं पता, but वो नहीं हुआ. And Okay. they gave us this email में ना उन्होंने एक note लिखा था. You can reapply after 6 months.
जैसे ही Okay. 6 months खत्म होता है, the next day I drop the email again to Roots Analysis. Let's see, I'm Mhm. back and I really want to apply. It was an off-campus thing for me, but it did Okay. work out. I was kind of, sending them bugging emails Okay. that let me know whenever you have the interview process, any openings. So yes, I got into Roots Analysis and I was happy because by the end of 4th year, much before that, I had that offer letter in my hand. Okay. Great. So that's when it started. And the journey from Roots Analysis was, a very basic journey over there. I spent good 3.5 years. I learned about market research, what is all about it. कि market research है क्या? It's all about assessing the market. Market कैसा है? How many players are there? What is the market share? और आगे जाकर after 10 years down the line, what is going to happen? क्या challenges Okay. हैं? क्या drivers हैं market में? When I say Mhm. market, any particular domain you're talking about. And I was specialized into the pharma life sciences sector. So Okay. yes, after Roots Analysis, I did work at Escalent for 2 years and then at ZS. And now I am in Canada and I'm here working as a healthcare research and data analyst for a top analytics, market research, and consulting firm called Clarivate. Great. Great. So, ma'am, really, uh, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी आई वुड से कि मतलब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊं तो बीटेक में वी ऑल फॉलो दैट काइंड ऑफ हर्ड मेंटेलिटी कि ठीक है, हमारे जब हम थर्ड ईयर में होते हैं तो हम देखते थे जेपी में, देखते थे कि ठीक है हमारे सीनियर्स जेपी नोएडा जा रहे हैं प्लेसमेंट सेशन में बैठने, तो हम भी नेक्स्ट ईयर उसी का पार्ट बनेंगे। तो एक ये रहता था कि हर्ड मेंटेलिटी की ठीक है, जैसा सीनियर्स ने बताया, सीनियर्स ने मेंटर्स ने गाइड किया, हम वही प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स ने गाइड किया, ये कंपनी आएगी, सेल्स की भी बहुत ज़्यादा कंपनी आने लगी। अब तो एडटेक की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा आती हैं कॉलेजेस में, फिर कुछ मार्केटिंग की कंपनीज आती हैं, और जो आईटी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये तो आती ही थी। फिर उसके बाद लाइक आई रिमेंबर कि मेरे टाइम पर तो एस्केलेंट और स्मार्ट क्यूब, ये सारी कंपनीज भी, डिलॉयट भी आई थी हमारे टाइम पर। तो मतलब मुझे ना एक चीज़ आपसे ये समझनी है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं लिंक्डइन पर कि मैम लाइक आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, यू वर लकी इनफ क्योंकि आप ऑन कैंपस भी बैठ चुके थे और आपके पास एक वो एज कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का आपके पास एक्सपीरियंस था, बिकॉज यू हैव क्रैक्ड दैट ऑलरेडी। सो अभी लाइक जो टीयर 3 सिटीज या फिर टीयर 3 कॉलेजेस हैं जो जिनके पास से प्रिविलेज नहीं है टू गेट ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफर, सो वो लोग अगर दे वांट टू एंटर दिस कंसल्टिंग डोमेन, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रोड मैप फॉर देम, कि उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है बायोटेक जैसे सभी बोलते हैं कि इतनी इवॉल्विंग नहीं है, बस ग्रोइंग ग्रोइंग कहते रहते हैं कि हाँ ग्रो हो रही है, लेकिन वो पता नहीं वो कब इतनी ज्यादा ग्रो होगी। लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों को जॉब करनी है, सब यही पूछते हैं कि हम कंसल्टिंग में कैसे एंटर करें, तो मुझे वो आपसे समझना है कि उन लोगों के लिए आप क्या रोड मैप सजेस्ट कर सकते हो। Sure. So I would say, अगर as per your situation, if there is someone जिसने already सोच लिया है, कि मुझे कंसल्टिंग करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू, हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड माय डियर। यहाँ पर आपने ऑलरेडी सोच लिया है, सो यू आर फोकस टुवर्ड्स वन पॉइंट। तो अब करना क्या है, यू जस्ट हैव टू सी हाउ यू कैन गेट टू पीपल जो ऑलरेडी इस डोमेन में है एंड वुड बी वोकल इनफ टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस और आपसे थोड़ा सा दे कैन चैट विद यू। सो ओके। वो करना कैसे है अब, it is called networking again. So this is the key nowadays. Networking से ही maximum चीजें होती हैं and it is very helpful for I would say both the sides who are networking with each other. तो आपको क्या करना है? You have to stay updated on LinkedIn always. It's very important. मैंने काफी लेट किया like after my 4th year. So I was a bit late there. So this is tip number 1. LinkedIn जल्दी से जल्दी update करो. Then try to connect with people in that domain जहाँ पे आपको जाना है. List out, shortlist कर लो अपनी companies where you want to connect with some employees and understand the kind of work that they're doing. Best रहेगा if you have some kind of a common connection with them. Say that Lavin and I, we are from the same college, right? So that was a best connection there. If you are from the same city, from the same school, क्योंकि तब तक यही होता है. Or maybe you have worked in some similar kind of NGOs. Keep looking through their profiles. What are they doing? उनकी activity क्या है? So ओके। find a common connection.
बहुत ही जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ उनसे बात करो कि आई रियली हम्म, वांट टू अंडरस्टैंड योर वर्क, द स्किल्स, सो दैट विल बी लाइक स्टेप नंबर 2 आफ्टर लिंक्डइन. डू द कनेक्शन थिंग. पूरा कनेक्ट करिए उनसे, बातों मतलब बात करिए, बातों बातों में उनसे समझिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग. फिर अपने आप को आप काइंड ऑफ इमेजिन कर लीजिए कि आप कर पाएंगे वो चीज़. आर यू एबल टू डू दैट? इफ से यस, देन स्टार्ट डेवलपिंग दो स्किल्स. तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज, सम ऑफ देम आर फ्री एज वेल. तो वो देख लीजिए. देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू यूट्यूब वीडियोज एज वेल. तो ये सबसे क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा. ज़्यादा कुछ नहीं करना, 30 मिनट्स पर डे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और आपका एम क्या होना चाहिए? यू नीड टू गेट वन इंटरव्यू, द फर्स्ट इंटरव्यू इन दैट फर्म. एक बार वो आ जाएगा, then you are into the process. It all depends on you how you can best present yourself with your skills and show them that you are here and you are aligning to the kind of role that they are looking forward to. तो वो पूरा ओके. आपको समझना पड़ेगा, क्या कंपनी है, क्या काम है. वो आपने ऑलरेडी नेटवर्किंग से सीख लिया. द स्किल्स दैट दे रिक्वायर वो आपने सीख लिया कोर्सेज से. स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिस योरसेल्फ टू कम्युनिकेट वेल. आप प्रेजेंट कैसे करेंगे खुद को? ठीक है, आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बट इफ यू नॉट एबल टू कन्वर्स प्रॉपरली, क्योंकि Yeah. बाद में आपको कंसल्टिंग में क्या करना है, क्लाइंट डीलिंग करना है, क्लाइंट एंगेजमेंट करना है. यू हैव टू गिव द क्लाइंट योर व्यूज. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कोलेट सम डेटा फ्रॉम द मार्केट, सी द ट्रेंड्स, ड्रॉ सम ग्राफ्स, प्रेजेंटेशंस, और उसको प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा. सो आई थिंक दैट्स दैट. So keep an Great. eye open for all the opportunities. Connect with people. Baki, do talk to placement coordinators. They help. They are aware of the situations of the prospect companies that are coming. अपने senior से बात करके रखिए, अपने professor से बात करके रखिए that this is what I want to do. और जैसे ही कोई opportunity, कोई company, I'm glad to know that JP में Deloitte जैसी companies आ रही हैं. That is good. क्योंकि 10 years back नहीं आती थी. So there are companies who are coming, like it's a big four. So if Yeah. it's coming to the prestigious institution that you're studying in, that is more than enough. You don't have to go somewhere off campus. Try nahi karna padega. It's there at Hanji. your doorstep. So just open the door and take the opportunity. Yes, ma'am. Yep. So, ma'am, like I have some few questions. So, I will start from the absolute basic, ma'am. I am the computer science student, so I am not aware of the bioscience. So, like, ma'am, like why you choose the bioscience? So, my basically question is, what things a student should take care in its like high school? Like, why should someone should choose the bioscience apart from the other streams of BTech? I would say for me personally, bio, I was kind of inclined more towards bio. ऐसा नहीं था कि मैथ्स में मैं अच्छी नहीं थी या फिर I didn't like maths. I was kind of fond of maths as well. But Mm, bio में मुझे जो डिटेल्स दिखती थी ना, I was like, when we studied the classification chapter in bio, I think सबने पढ़ा होगा 9th 10th grade में. और उसमें क्या रहता था, so many big names, we don't know what we are reading through, पढ़ा भी नहीं जाता था, right? प्लेटी बट मुझे हेलमनथीज एक वो नाम याद आया मुझे. एग्जैक्टली. हाँ जी. सो जब हम इकोलाई को फुल फॉर्म में लिखते थे, सबका स्पेलिंग mm, मिस्टेक होता था, राइट? मेरा नहीं होता mm. था बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ इट. Yeah. सो मैंने वो Yeah. पढ़ा. आई वांटेड टू डू इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मैं ये मानती हूँ कि आपको 10th ग्रेड तक भी नहीं समझ आता वेयर इज योर इंटरेस्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू. अगर आपको Mm, उस पॉइंट पर भी समझ आ गया ना कि यार ये नहीं करना है, देन ऑल्सो यू आर एट अ गुड स्टेज. सो yeah. मुझे ये पता लग रहा था मुझे नॉन मेड नहीं करना है. Mhm, तो मुझे कॉमर्स भी नहीं करना है और मुझे किसी और mhm, स्कूल में भी नहीं जाना है. आई वाज काइंड ऑफ mhm, श्योर. एंड मुझे ये भी पता था आई लाइक बायोलॉजी, mhm, सो आई कैन मूव mhm. फॉरवर्ड विद द मेडिकल फील्ड. Yeah. सो So मेरे लिए like we have other medical fields also like या MBBS and we have like BTech in bioscience. So like I'm not aware of this. Like MBBS is proper medical, right? And या bioscience is I think maybe or partially medical or maybe not. So what's your point on this? आई वुड से कीप योर ऑप्शंस ओपन. मैंने भी ओपन Hmm. रखा था. आई डिड, मेरे टाइम पर वो पीएमटी होता था या नीट, आई डोंट रिमेम्बर. आई डिड Hmm. क्वालिफाई दैट एग्जाम एज वेल. आई Hmm. गॉट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज, बट वो Hmm. एमबीबीएस नहीं था, वो डेंटल था. आई वाज गेटिंग अ सीट इनटू द बीडीएस. तो Hmm. मुझे वो नहीं BDS. करना.
या तो मुझे एमबीबीएस मिल जाता, मे बी आई वुड गो देयर टू बिकम अ डॉक्टर, बट देन द सेकंड ऑप्शन फॉर मी वाज बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने बायोटेक लिया बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही हिडन चीजें दिखती थी मुझे. वी जस्ट हैड 1 3 4 पेजेस का चैप्टर इन आवर बायोलॉजी बुक इन 11th क्लास. द नेम ऑफ द चैप्टर वाज बायोटेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. उसमें पता चला कि यार ये डीएनए है, ये जीन है उसके अंदर. और थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा टाइम लगा समझने में कि डीएनए क्या होता है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज अ क्रोमोसोम. नहीं समझ आता था यार शुरू में. जब थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, देन आई गॉट टू नो कि वाओ, देयर इज सो मच दैट वी कैन डू विद जीन्स. थोड़ा सा रिप्लेस करो और यू कैन डू वंडर्स. सो अब तो काफी सारी पब्लिक रिसर्च अवेलेबल है, यू शुड स्टार्ट रीडिंग. Yeah. या वन फॉलोअप क्वेश्चन हेयर दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज, जैसे आपने बताया कि जितना मुझे समझ में आ रहा है आपकी कि आपने रिवर्स साइकोलॉजी कह लो या फिर रिवर्स पैटर्न में कि अच्छा ठीक है, मुझे कॉमर्स नहीं करना, मुझे ह्यूमैनिटीज नहीं करना. तो जब हम ऑप्शंस को नलीफाई करते रहते हैं तो हो सकता है कि हम एक सर्टेन पॉइंट पर जाके हम अपने राइट पाथ पर पहुंच जाएं कि ठीक है, मेरे को यही करना है कि एमबीबीएस करनी थी, अगर नहीं हुई बीडीएस में मिला तो नहीं करना, तो इवेंचुअली हम बायोटेक तक पहुंच गए. लेकिन जी. मुझे ये पूछना है कि वो क्लैरिटी कैसे आई आपके मन में कि यार मुझे, जैसे मैं अगर जेपी का ट्रेंड देखूं तो जेपी में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पॉपुलर है कि मास बीटेक के बाद बंदे एमएस करने या तो बाहर जाते हैं या फिर इंडिया में भी एमटेक करते हैं या पीएचडी. मतलब 50-60% बंदे बीटेक के बाद जॉब नहीं करते हैं. तो आपने सीधा बीटेक के बाद जॉब की एंड लास्ट 7 इयर्स में आप बहुत अच्छी, मतलब आप एमएनसीज में आप काम करके आ चुके हो और अच्छा ग्रो कर रहे हो. तो वो क्लैरिटी कैसे आई कि हाँ यार यही फील्ड में जाना है, कि मार्केट रिसर्च से स्टार्ट किया कि कंसल्टिंग में मेरे को खुद को स्टेब्लिश करना है. फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने ये कैसे क्लैरिटी स्टेब्लिश की. सेकंड, ये क्लैरिटी कैसे आई बीटेक करते हुए कि यार परसुइंग एमएस और परसुइंग हायर स्टडीज इज नॉट माय कप ऑफ टी. ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं. श्योर, श्योर. सो यार, दिस साउंड्स सो अमेजिंग व्हेन यू टॉक अबाउट इट, क्योंकि इतनी क्लैरिटी कभी आई नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये, पता है, जल्दी-जल्दी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती एक्चुअली. आपके क्लास के टॉपर को भी नहीं आएगी बीटेक में इतनी क्लैरिटी. मुझे भी नहीं थी कि मुझे कंसल्टिंग में ही जाना है, दैट पार्ट. सो मुझे बस ये क्लैरिटी थी दैट आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे आई वांट समथिंग बिफोर आई हेड आउट ऑफ द कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन. यू नो ओके. उतनी सी क्लैरिटी थी बस. और मेरे ऑप्शंस क्या थे? मेरे ऑप्शंस थे या तो प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, या फिर यू कैन अप्लाई फॉर मेट, मतलब एमटेक कर लीजिए, गेट का एग्जाम दे दीजिए. आई ट्राइड, पर मुझे वो होता है ना कि 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार ये करना ही करना है. बिकॉज शायद मैं अपने आप को, आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट और बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि यार मुझे, मैं कॉलेजेस भी नहीं ढूंढ रही थी बिकॉज शायद मुझे वो जाना ही नहीं था. सो दैट वाज वन पार्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं था शायद. मैंने गेट का एग्जाम दिया, 100% तैयारी करके नहीं दिया, शायद नहीं हुआ. थर्ड ओके. थिंग, आई डिड टॉक टू सम सीनियर्स, कुछ क्लोज कजन्स भी थे जिन्होंने काइंड ऑफ सिमिलर माइक्रोबायो और ये सब किया था. सो आई काइंड ऑफ हैड सम चैट्स विद देम. उन्होंने क्या बताया कि एमटेक करके भी जॉब नहीं मिलेगी तुझे. तो हाँ, वो सही समझ बात है. आया. उसके बाद देवर, लाइक आई हैव क्लोज फ्रेंड्स हु डिड एमटेक, हु डिड पीएचडी एज वेल, और अभी जॉब कर रहे हैं. और तब मुझे नहीं पता था कि मिलेगी नहीं मिलेगी, शुड आई स्पेंड द नेक्स्ट 2 years एज वेल इनटू एमटेक, कैसे करना है, और गेट भी नहीं हुआ है तो क्या करना है. सो यही था कि मैंने एमटेक का ड्रॉप कर दिया प्लान. और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात आई, नहीं हुई मेरी प्लेसमेंट, टिल फेब नहीं हुई थी. आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर. जैसे ही फेब में मेरे 6 months खत्म हुआ वो पीरियड, आई डिड गो बैक एंड ट्राई, वो हो गया. उसके बाद द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे पूरा बैच में, बीआईबीटी में से सिर्फ मेरा हुआ था. सो आई वाज ओके. द ओनली वन प्लेस्ड. सो देन आई वाज डबल श्योर कि यार आई शुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, कि मुझे करना नहीं है. गवर्नमेंट एग्जाम्स भी एक ऑप्शन होता है जो बहुत लोग लेते हैं, वो भी मुझे नहीं करना था. आई वाज वेरी वेरी श्योर देयर, आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स. तो मुझे ओके. बस यही क्लैरिटी थी कि प्लेसमेंट चाहिए. ये नहीं पता था कंसल्टिंग में चाहिए. थोड़ा पढ़ा मार्केट रिसर्च क्या है, थोड़ी रिपोर्ट्स देखी, केस स्टडीज देखी, इंटरेस्टिंग लगा तो ले लिया. बट ओके. आई वुड से एज यू स्टार्ट वर्किंग देयर, जैसे जैसे पढ़ा सीखा तो बहुत इंटरेस्ट आया. जैसे ही फर्स्ट कंसल्टिंग का असाइनमेंट किया,
It was we are advising pharma companies, we are advising medtech companies. तो वो interesting था, you know. That Great. was the kind of clarity. पूरी clarity कभी नहीं आएगी, अभी भी नहीं होगी मुझे कि मुझे यही यही करना है सिर्फ. We always should have plan Bs. Absolutely. I hope it So, ma'am, answers. moving on. One Yeah. thing I would like to know कि like you have given 7 years or to this industry of consulting, I would say. So, ma'am, अगर हम पूछें तो start मतलब आपने in 7 years में throughout these 7 years, what other expertise or verticals you have explored and other expertise that you have gained in these 7 years with terms to फार्मा नॉलेज कहें, बायोमेडिकल कहें, या फिर और अदर सॉफ्ट स्किल्स जो आपने डेवलप किए हैं, जो कि मतलब ये जो मेरा मतलब द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज आई वांट टू अंडरस्टैंड द लोगों को ये पता चलना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए कि अच्छा कंसल्टिंग में अगर मैं अपने 5 साल दूंगा, फॉर एग्जांपल आज मेरी मेरी बीटेक आज कंप्लीट हुई, अब मैं आने वाले 4 या 5 साल अपने कंसल्टिंग में दूंगा, तो ग्रोथ कैसी रहती है कंसल्टिंग डोमेन में, कंसल्टेंट करता क्या है, तो आप थोड़ा सा उस पर अपने थॉट शेयर कीजिए, प्लस कि एक कंसल्टेंट 4 से 5 साल में क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सीख लेता है और वो हेल्थ केयर डोमेन को कितने क्लोजली समझ पाता है। Sure, sure, sure. So, I would say अगर कंसल्टिंग में हो, अब जैसे मेरा क्या था कि मैं वेट रिसर्च में नहीं गई, ऑल्दो हम लोग लैब रिसर्च भी करते थे, राइट? अपने बीटेक में, वहाँ नहीं गई मैं, एमटेक मास्टर्स में नहीं गई, तो शायद मुझे जो डोमेन नॉलेज बोलते हैं सर, बायोटेक के बारे में नॉलेज या फार्मा लाइफ साइंसेस के बारे में नॉलेज था, सो वो मुझे वो मेनली 4 years या +2 years ऑफ माई मेडिकल इन +1 +2 वहाँ से आया था, ठीक है? So that much is enough, believe me. That much is enough when you enter. बाकी का जो होता है, जो जितना भी आपको सीखना है, ठीक है? वो आपको बस इतना करना है कि अपना ओपन माइंड रखिए व्हेनेवर यू एंटर द ऑर्गनाइजेशन वो आपको सिखाएँगे, तो आपको ओके। सीखना है। यू ऑलवेज़ हैव टू स्टे वेरी क्यूरियस कि मुझे ये भी सीखना है और स्टेप बाय स्टेप आएगी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिकल वेयर आई हैव बीन, व्हाट आई हैव लर्न्ड, देयर इज़ अ लॉट। अभी जो आई बिलीव कि आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, आई नो दैट यू आर वर्किंग इन ग्रेबी। ग्रेबी में जब आपने एंटर किया होगा एंड 2 इयर्स नाउ डाउन द लाइन आई थिंक आपने थाउज़ेंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव लर्न्ड, राइट? तो आपको जब स्टार्टिंग में था मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया मार्केट रिसर्च से, सिखाया कि यार सेकेंडरी रिसर्च होता क्या है? जस्ट गो ऑन सेकेंडरी रिसर्च सोर्सेज़ लाइक गूगल से स्टार्ट कर लेते हैं। गूगल पे ढूँढो, डेटा निकालो। नेक्स्ट चीज़ आती है डेटाबेसेस, डेटाबेसेस से ढूँढो। नेक्स्ट आती है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? डायरेक्टली आप कॉल कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ कर रहे हो, सर्वेज़ कर रहे हो, स्क्रीनर्स भेज रहे हो, तो आप डायरेक्टली किसी से इनसाइट्स जनरेट करा रहे हो। ठीक है? तो ये सेकेंडरी सोर्सेज़ हो गए, प्राइमरी सोर्सेज़ हो गए। ये बेसिक काम था। अपार्ट फ्रॉम मार्केट रिसर्च नाउ, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस जब सीखा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अब कोई पेन ले लो, एक पेन है, पेन बनाने की कितनी कंपनीज़ हैं, ठीक है? आई हैव अंडरस्टूड द मार्केट, आई हैव डन द मार्केट रिसर्च, मुझे समझ आ गया ड्राइवर्स क्या हैं, रिस्ट्रिक्शन फैक्टर्स क्या हैं। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सो ओके। वहाँ से मुझे पता लगता है कौन मेन प्लेयर्स हैं, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, सेलो है, मॉन्टेक्स है, फ्लेयर है, सो किसके पास है इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया पेन मार्केट। सो ओके। दैट इज द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या सीखा? क्लाइंट्स, द मेन पार्ट, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। वो आपको कोई पता है, यू विल नेवर रीड अ बुक और गो थ्रू अ सेशन और गो थ्रू अ कोर्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, आपको सही बात। करके पता चलेगा। इनिशियली आप शायद शैडो करोगे अपने मैनेजर को, कंसल्टेंट को, और आप क्लाइंट कॉल्स में आओगे, देन दे विल आस्क यू कि कम ऑन कृतिका, कैन यू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स। तो तब आपको करना होगा एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक। उसके बाद धीरे 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 बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट टेकिंग योर क्लाइंट कॉल्स अलोन, राइट? यू विल लीड द क्लाइंट कॉल्स, यू विल हैव योर ओन टीम इन अनदर क्लाइंट कॉल। तो वो धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप है वो क्लाइंट एंगेजमेंट शुरू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ओके। दैट यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट पिचिंग द क्लाइंट, सेल्स पार्ट। जब आप प्रपोजल्स बनाते हो, आरएफपीज बनाते हो, तो क्लाइंट के सामने लेके जाना है और सेल्स कैसे करना है, वो भी एक ओके। अनदर पार्ट है। दैट इज अनदर पार्ट। एंड आई वुड से अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये तो टेक्निकल नॉलेज है यार, सबका मिल ही जाएगा ऑन द जॉब। नाउ कम्स
more interpersonal things, which is how to interact, emotional intelligence and adaptability. तो आप इंटरैक्ट करना कैसे सीखोगे? जब तक बात नहीं करोगे, इंटरैक्ट कैसे करोगे, राइट? वही आप True. बुक पढ़ के नहीं सीखोगे, आप कोर्सेज करके नहीं सीखोगे। यू हैव टू सही. इंटरैक्ट, यू हैव टू लर्न। जहाँ भी आपको लर्निंग मिलती है, जस्ट कैच इट। इट डजंट मैटर कोई जूनियर है, सीनियर है, अभी एंटर किया है ऑर्गेनाइजेशन में या 10 साल से है। जस्ट यू नो कीप योर माइंड ओपन, बी क्यूरियस टू लर्निंग। तो वो है अडेप्टेबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग। कभी कभी स्ट्रेस होगा अगर वर्क प्लेस पे, क्योंकि काम बढ़ता जाएगा, लाइक कभी एक जैसा नहीं रहेगा। तो वो अपना एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। नथिंग शुड इम्पैक्ट योर इनर पीस, राइट? आफ्टर दैट अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग जहाँ पे आपको अडेप्ट करना है एज पर द सिचुएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। और कभी कभी लाइक देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वेयर योर हेल्प इज नीडेड, और साथ ही साथ आपका मैनेजर आपको कुछ और टास्क भी दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट वर्क। सो बी अडेप्टेबल टू चेंजेस, देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस, प्रायोरिटीज चेंज कर देंगे क्लाइंट की, मुझे वो 10 दिन बाद नहीं, मुझे वो कल ही चाहिए। सो बी अडेप्टेबल। आई थिंक या Okay. that is something that we learn over time. Baki technical knowledge, the verticals I've talked about, the interpersonal skills that we need into the consulting domain. Okay. Does it Great. answer your question? या एब्सोल्युटली मैम. मतलब बहुत आपने बहुत अच्छे से एक एक पिलर और एक एक एस्पेक्ट पर आपने बात की, एंड यू नो इट वाज अ वेरी डिटेल्ड आंसर. I hope so. And detailed explanation also. So it was good. So, so ma'am, like I have one more question. So, what is the scope of a biotech industry in India? Okay, so when we talk of biotech industry, अब Hmm. उसमें भी यार बहुत if I talk about core biotech R&D, Hmm. that Hmm. means wet lab research. उसका Hmm. स्कोप बहुत है, इंडिया Hmm. में भी है, आउटसाइड इंडिया भी बहुत है। Hmm. However, in India, कभी शायद आप लोग ने सुना होगा कि सैलरी तो है नहीं, Yeah. रिसर्चर्स को सैलरी नहीं मिलती उतनी ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रेमेंडस एफर्ट्स एंड गुड Hmm. वर्क इन रिसर्च। Hmm. अब क्यों नहीं है? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जो फंडिंग है इन प्रोजेक्ट्स की जो गवर्नमेंट दे रही है, वो थोड़ी सी लिमिटेड है। Hmm. ओके, देयर इज लिमिटेड फंडिंग, क्योंकि बहुत सारी Hmm. ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हेल्प भी कर रही है, बट देन Hmm. इतनी फंडिंग भी नहीं है टू फंड एवरी प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, वी कैन ऑल एग्री टू दैट। वो Hmm. चीज़ भी लिमिटेड है। फिर थोड़े से रेगुलेटरी हिंड्रेंसेस होते ही हैं। आई मीन एपैक में, एशिया पैसिफिक की जब बात करें हम लोग, तो वो Hmm. है। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, जो आपकी सैलरी रेंजेस हैं, थोड़ी सी अफेक्ट हो रही हैं, वो होती भी रहेंगी। हाउएवर, इफ आई टॉक अबाउट द स्कोप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ दिख रही है। अभी मुझे लास्ट, आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस डोमेन फॉर द पास्ट 5 6 7 years मेनली। तो वो ग्रोथ तो हुई है, क्योंकि जो मुझे कह रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, they can now see that biotechnology में काफी कुछ है। And if someone is like a core biotech person who wants to go into biotechnology, microbiology, all of these fields, should go there। क्योंकि मैंने, when I did my wet lab, I would say in 4th year, जब project होता है आपका final year, मैंने पूरा वो wet lab किया। I did a good study on animals and plants. I did get a paper published as well। सो वो चीज़, आई वाज एबल टू सी दैट हाँ, ये काम नहीं हुआ है अभी, एंड वी हैव डन इट एंड वी हैव गॉट द पेपर पब्लिश्ड। सो अभी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं, who are in touch with me and are doing very good work at different organizations, research organizations, as research fellows, and they are getting good decent pay, and they are believing to get some high pays in the next 2 years, I think. So that is Okay. good. So, Yeah. ma'am, like, what difference do you feel like working in Canada in a biotech industry and working in India in a biotech industry? Oh, I'm kind of new to the job, but I'm not new to the field. So it's more or less the same. The kind of work is kind of like the same. However, in Canada, we have more emphasis on work-life balance, number one, and professional development. Hmm. So जैसे इंडिया में हम लोग काम करते हैं काफ़ी सारा
मैक्सिमम हमारा ध्यान काम पे ही होता है। यहाँ पर भी काम पे काफ़ी ध्यान होता है। हाउएवर along with the work, they make sure that if you have your log out time as 5 PM, it should be 5 PM. Yeah. ठीक है? That is something very important outside India. So discipline is also very important here. That अगर 9 o'clock to 5 o'clock आप काम कर रहे हो 9 to 5 जॉब में, so it has to be that you have to stick to the plan. Then you work hard, then people are here approachable. जिस तरह का काम हम इंडिया में कर रहे हैं उस तरह का ही काम यहाँ पर है, but it's more like you're dealing with the clients directly. The best thing is that the time zone is same with the clients, right? US का जो हम लोग को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती थी इंडिया में, that when we're dealing with US clients, Canada clients, तो आपको कॉल्स जो हैं रात को लेनी पड़ती है, जिस तरह से आप लोग को अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ रहा है. So apart from that, they always make sure कि आप प्रोफेशनली डेवलप करिए. इंडिया में हमारे परफॉर्मेंस रिव्यूज होते थे. वी हैड टू सेट सम गोल्स विद द मैनेजर. वी वर डूइंग वेरी गुड. बट यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम कोर्सेज दैट वी हैव टू गो थ्रू. जैसे पीएमपी है. So PMP is a very important course that someone in a consulting or a project management field should go through. So that is something which is given high emphasis on in Canada. Yeah. Okay. So Yeah. yes. Yeah. So, like, I have one more question. Like in COVID time, we saw the very much boom in IT and CS industry. So, are we expecting any boom in a biotech industry also in coming years? So I would say biotech में it's a continuous growth. You know, the continuous growth curve. ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही स्पाइक आपको कभी दिखेगा. अदर या तो कोई ब्रेक थ्रू हो, बहुत ही बड़ा Yeah. ब्रेक थ्रू हो. Apart from that, I don't see any particular like a spike in the graph, but it's definitely going to increase over time because research efforts भी हैं, organizations भी हैं, people are interested as well. So a lot is happening already, but the industry is definitely growing. Okay. Okay. So, ma'am, from my just a last question, ma'am. So, like in high school, also, lot of people said to you कि कोई स्कोप नहीं है बायो साइंस इंडस्ट्री में कोई जॉब नहीं देगा एंड आफ्टर बीटेक आल्सो यू फेस द सेम क्वेश्चन सो हाउ डिड यू लाइक डील विद दीस पीपल्स और सिनेरियोज और दीस आई विल से sarcasm so what was your approach to deal with this and what advice do you give to students who are approaching to the bioscience industry and taking this field so how what advice do you give to the students to make them mentally prepared about these things I just have one advice. The thing that worked for me was कि आपको ट्राई तो करना ही है, राइट? आप अगर ट्राई नहीं करोगे, if you're leaving the field, आप किसी भी तरह से हार रहे हो, राइट? yeah तो आपको वो ट्राई करके हारना है. that is something that I believe in. कि ट्राई तो करना ही करना है. नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे. yeah So give it a try always. Never quit. You know, give your 100%, 200% if required. और क्विट तो कभी नहीं करना है. सो जस्ट कीप गोइंग. अगर मुझे कोई कह रहा है कि यार कल को ये नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, सो इट्स ओके. आई हियर द थिंग दैट यू आर सेइंग. आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, योर ओपिनियन, बट बेस्ड ऑन माय रिसर्च, बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव इन माइंड, और मेरे जो आई हैव टू डू माय होमवर्क एज वेल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार बायो में कुछ जॉब है नहीं है. So do your research and never quit. Give your 100%. You are going to chase something good. Believe in yourself. Okay. sure ma'am. मैम मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. वो थोड़ा सा ना टेक्निकल नहीं है वो. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर मेंटल टफनेस यू कैन से और योर थॉट प्रोसेस कि क्योंकि ना लाइक और ये जो मैं क्वेश्चन है मेरा वो अभी अभी आपसे बात करते करते आपकी पूरी जर्नी समझ के अभी अराइज हुआ क्वेश्चन. तो इट्स लाइक कंपेयरिंग एन ऑरेंज विद एन एप्पल. बट ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है. लाइक अगर एक बंदा बीटेक का है, ठीक है, अभी तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया और 4 साल बीटेक का एक्सपीरियंस है, तो 11 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल. तो उसमें तो यू हैव सीन अ लॉट. बट अगर कोई बंदा बीटेक का है, एक कंप्यूटर साइंस उसका रूममेट है, सीएसई इंजीनियर है, उसने उसका पैकेज देखा कि यार 15 एलपीए 20 एलपीए का पैकेज लगा, और एक बायोटेक इंडस्ट्री का बायोटेक ग्रेजुएट का पैकेज मैं मैक्स टू मैक्स मान के चल रहा हूँ 6-7 का. अगर उसने कोर में गया, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, अगर वो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है और आईआईटी में है तो वो जा सकता है above 10. बट मोटा मोटा below 10 यू कैन एक्सपेक्ट. तो वो जो एक
इनसिक्योरिटी कह लो, या फिर क्योंकि एक 20-21 साल के बंदे का जो बीटेक कर रहा है उसके मन में ये थॉट आ ही सकता है कि यार जो मेरा रूममेट है जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है वो 20-25 LPA तक ही इज गेटिंग हिज स्टार्टिंग पैकेज, मैं अभी यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं तो 6 बहुत फार फेच बोल रहा हूँ, उससे भी कम मिलता है लोगों को, 3-3 4-4 में मैंने लोगों को देखा है कोर बायोटेक कोर R&D में जाते हुए। तो लेकिन ये थॉट तो आपके मन में भी आते ही होगा, तो आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे हमारे जो कि बहुत यंग ग्रेजुएट्स भी हैं कि यार जब ऐसी सिनेरियो आए, ऐसी सिचुएशन आए कि यार मेरी पहली बात तो पैकेज नहीं लग रही है तो बहुत कम लग रही है, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है, गलती तो नहीं कर दी, जो सेल्फ डाउट राइज होते हैं ना एक बायोटेक इंजीनियर के मन में, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मोरल बहुत हिला के रख देते हैं। तो आपने इनसे आपके लाइफ में भी जब ये सिचुएशंस आई थी तो आपने कैसे डील किया था, या फिर आप और अगर अभी आप अपने आपने इतनी आपकी जर्नी लंबी रही है तो आपने कैसे सीखा है कि इन सिचुएशंस में, फेलियर्स में या फिर ऐसी सिचुएशंस में कैसे कोप कर सकते हैं? Wow. I think this is kind of the most important question जो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में आता ही आता है। डेफिनेटली मेरे मन में भी आया होगा। बट हाउ आई काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है that as you just mentioned in the beginning कि that's an apple to orange comparison, right? तो जो बायोटेक इंडस्ट्री है, उसका मार्केट है या फिर मार्केट में वैल्यू क्या है, इफ यू एंटर एज अ फेलो और एन एनालिस्ट इनटू द बायोटेक इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो पैकेज है वो यही है, यू नो एंड जब आप CSC में जैसे आप जाएंगे तो उसका जो पैकेज है दैट इज काइंड ऑफ वे हायर देन व्हाट यू मेंशन्ड। तो उसके सिंपल सा एक ही चीज़ है कि आप अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। मे बी 10 years डाउन द लाइन you would be doing greater or better than whom you are comparing yourself with. So because I have seen live examples with myself as well कि शायद जहाँ पर after 5 years 6 years मैं थी, like when I was in India as well, I was doing much better than other guys from electrical or computer science or mechanical whatever. So उनकी जो ग्रोथ है ना यार, आपकी जो बिग IT कंपनीज की ग्रोथ रहती है वो उतनी हाई नहीं रहती है। देयर इज अ स्विच, यू गेट अ गुड हाइक। बट जब आप मेरे हिसाब से जिस जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं कंसल्टिंग में, if you do good in your domain, when I say good, you like very good in your domain, when you have that knowledge, so your name is something that speaks of your work, when Yeah. you deal with clients kal ko. So I have seen people who have moved from consulting to directly their client side as well. I've seen people ki small consulting firm se thoda thoda big firms mein gaye and then to the big four and then MBB में जा रहे हैं। So वो जो Okay. jumps आते हैं ना, they give you the monetary growth, also the professional growth that you are longing for. But अब जो बीटेक का बंदा है उसको इतना नहीं पता, उसको सिर्फ पैसा सही दिख बात। रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको पैकेज दिख रहा है जो वो अपने घर पे बताएंगे, अपने कजिन्स को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे कि हमारा सही इतने बात। का पैकेज लगा है, राइट? तो उन लोग के लिए क्या है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस ग्रोथ। उनको यही समझना पड़ेगा दैट जो है अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अनदर जॉब एज वेल। स्ट्राइव करो, अगर आपको हाई पैकेज की आपकी इंडस्ट्री की मिल रही है, स्ट्राइव फॉर इट। देर आर कंपनीज जो हाई पैकेजेस भी दे रही हैं हम्म। बायोटेक में। सो स्ट्राइव, उसके लिए तैयारी करिए और उनमें जाइए। वहां भी नहीं मिल रहा है तो जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, बिकॉज वहां से आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट। बहुत सारी लर्निंग होने वाली है डाउन द लाइन। मतलब आई रियली होप दैट ये वीडियो लोग देखें एंड समझें कि देयर इज अ लॉट इज देयर फॉर यू इफ यू स्टेप आउट, जस्ट मेक योर वे थ्रू इट। तो बहुत कुछ है जो रिवॉर्डिंग है और आपका करियर काफी रिवॉर्डिंग रहेगा। आप एक बार शुरू तो करिए। एब्सोल्युटली। भैया डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन यार, कंप्यूटर साइंस के आपने बायोटेक से भी कंपेयर मत कीजिए। सही बात है। Yup. ट्रू। Yeah, that's all I want to say. ओके। मैम दैट वाज रियली एन इम्प्रेसिव एंड काफी वो एक आपके आंसर में ना, मतलब मेरे को वो एक्सपीरियंस और वो मैच्योरिटी भी साफ साफ रिफ्लेक्ट हुई है कि दैट्स व्हाई आई अप्रोच्ड यू बिकॉज आई न्यू दैट यू वुड बी द राइट पर्सन, क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन पे जितने भी जूनियर्स के मैसेजेस आते हैं ना, वो यही आते हैं कि पैकेज को लेके सेल्फ एस्टीम बहुत हिट करा हुआ होता है, जॉब नहीं मिल रही होती है, या फिर बहुत ही
बिलो एवरेज उनका पैकेज लगता है. सो आई बिलीव कि हमारी ये वीडियो जब हमारा इंटरेक्शन लोग ये वीडियो के थ्रू देखेंगे तो दे विल कम टू नो, एंड फ्रॉम योर जर्नी दे विल लर्न कि हाँ लाइक कृतिका ने भी बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया, फ्रॉम रूट्स एनालिसिस, एक मोहाली से स्टार्ट करके, मोहाली की एक कंपनी से स्टार्ट करके, हाउ शी इन्वेस्टेड 7 years, कैसे सॉफ्ट स्किल्स पर काम किया, अपस्केल किया, कोर्सेज किए, और कैसे बहुत एक्सेल किया और खुद को अपडेट करते करते हुए वो आज एक वन ऑफ द मार्केट लीडर्स और वन ऑफ द बेस्ट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो अभी जॉब कर रहे हैं. सो मैम काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आई बिलीव जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर सजेशंस, द रोड मैप which you have provided, the journey that you have shared with our audience. So ma'am, it was an absolute pleasure to have you on our Beyond the Ranks podcast, uh, and it was an honor for both of us, for me and Sachin, to have you to interview you, and it was a great learning session. Oh, it was amazing. It was a learning session for me as well. Sometimes याद नहीं रहता कि आप कहाँ से आए हो. So it's good to connect back to your roots and say it all. I Yeah, really hope that this show and the things that you're doing, even this video, is helpful for all the students, because both of you guys, you're doing amazing work, thank and you. it is going to impact a number of people, because हम लोग भी सोचते थे यार guidance कहाँ से ले. सही बात है. So I really hope, and I wish you all the very best for the coming future and in your careers as well. So thank you for having me on the show. Thank Thank you you. so much, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. So, Right. to all the audience, I'll just request to please, like, share, and subscribe to our channel, and just keep hustling, keep growing, and keep shining. Bye bye. Have a nice day, ma'am. Bye.